tense. Tense is used to express the time of an action and its degree of completeness. In Hindi we can say काल का तात्पर्य समय में हो रहे क्रिया एवं उसके समाप्ति से है. Now, present tense. Tense is classified in three parts. First, present tense, past tense, and future tense. Present means an action which happened in present time, which denotes in present time. Past, an action which happened in past time, that is called past tense. Future tense, an action which will be in future, that is called a future tense. Now, present, like present tense can be also classified in four parts. Present 4, past is also classified in 4 parts, and future is also classified in 4. Now, simple present tense. First is simple present tense. Present continuous tense. Simple present tense, we can also say present indefinite tense. Present indefinite tense, this is alias name of simple present tense. This is nickname of simple present tense. Present indefinite. Some person says it simple present and some person says it present indefinite. Next is present continuous tense. Present continuous tense. It can be also say present progressive. Yes. You are listening right? Present progressive. Present continuous tense, present progressive tense. Present imperfect tense. We can also say present imperfect tense. These are the alias name of present continuous tense. Someone says it, someone says it present progressive, and someone says it present imperfect. Third, present perfect tense. And one of the last tense of present tense is present perfect continuous tense. Past is also similar, only you have to affix. Now, here is simple present and you will use simple past. Simple present, this is simple present and this is simple past. These are the similar, these will be similar, but only you have to change in past. This tense, you have to change only these part, these portion. Simple past, past continuous. I have already told you the past continuous has also three names: past continuous tense, past progressive tense, and past imperfect tense. Third is past perfect, and last is past perfect continuous tense. This will be also same. You have to only change future. Everything will be same. Future tense. This is simple future. And next is future continuous. You can also say future progressive. You can also say future imperfect. And next is future perfect. One of the last of simple one of the last of future tense is future continuous, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. So तो नहीं कर रहा ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
तीन नाम है, कुछ लोग उसको इम्परफेक्ट बोलते हैं, कुछ लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं। लाइक जैसे कोई स्टूडेंट्स है, उसका निक नेम होता है ना, जैसे मान लीजिए गोलू, और उसका ऑफिशियल नेम कुछ होता है और घर में कुछ और होता है। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कुछ लोग इम्परफेक्ट बोलते हैं और कुछ लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार एक्शन चलने वाला, ऐसा वर्क जो लगातार चल रहा है। इम्परफेक्ट जो खत्म नहीं हुआ है। प्रोग्रेसिव जो चल रहा है, मतलब प्रोग्रेस में हो। तो अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। विच फॉर्म? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। लाइक is MR is what? Is MR is helping verb, and before is what? This is main verb. यह मेन वर्ब है, इसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, लेक्सिकल वर्ब के भी नाम से जानते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर के बाद B4 लगा दीजिए, बस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब एग्जांपल में जैसे हो गया, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, she is playing, he is dancing. I am playing. Where shall I use am? With I, you will use am. With third person singular, you will use is. With third person plural and you will use are. Negative. is MR के बाद not लगा दीजिए, बस हो गया negative. Subject plus is MR, not before object complement. I am not playing, she is not coming, she is not working, you are not playing well, he is not playing good. तो this is negative. Interrogative, अब इंट्रोगेटिव जो है दो टाइप होता है, मैंने इससे पहले भी बताया। एक यस नो होता है और एक WH। यस नो मतलब what? जिसका हम हाँ और ना में जवाब देते हैं। WH मतलब क्या? जिसको हम एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसका हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इज एमआर, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सबसे जबरदस्त ट्रिक है, कोई भी चीजों को इंट्रो में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, प्लस सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, बिफोर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इज एमआर बता ही दिए कहाँ लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम। एम जो है सिर्फ आई के साथ आता है, एम का फ्रेंड आई है, बाकी वो किसी के साथ नहीं आता। आर किसी के साथ भी आ जाता है, यू के साथ भी आर लग जाता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी आ जाता है। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लगा देना है, फिर नॉट लगा देना। नॉट इज, यह आप पे डिपेंड करता है कि नॉट लगाए ना लगाए, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। जैसे आर यू नॉट गोइंग देयर क्रिकेट, इज शी प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो गया यस नो। अब WH क्या हो गया? WH में पहले WH फैमिली क्या होता है थोड़ा बता देंगे, व्हाट, वेयर, व्हाई, दिस इज WH। तो वेयर आर यू गोइंग, दिस इज WH क्वेश्चन, नॉट ए यस नो क्वेश्चन, जिसका हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, वेयर आर यू गोइंग, why are you not playing, this is WH, that's it. Now present perfect tense। present perfect क्या होता है? जैसे present perfect मतलब होता है जो एक्शन प्रेजेंट में हो लेकिन उसका जो परफेक्ट हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए। तो इसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का तीसरा रूप। नाउ the question raised here, where shall I use have and where shall I use have? have कहाँ लगाएंगे और has कहाँ लगाएंगे? तो have जो है वो हमारा प्लूरल वर्ब है। have क्या है? प्लूरल वर्ब है, और has जो है सिंगुलर वर्ब है। मतलब तो यही हुआ कि have का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ और has का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ। Now I have gone there, I have taught him, I have gone there, मैं वहां गया हूं, I have taught him, मैं उसे पढ़ाया हूं।
नाउ नेगेटिव में भी कुछ नहीं करना है। आई हैव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, बस हो गया, वो निगेटिव हो गया। जैसे आई हैव नॉट गॉन देयर, मैं वहां नहीं गया हूं। आई हैव नॉट टॉट हिम, मैं उसे नहीं पढ़ाया हूं। नाउ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, कई बार मैंने आपको बताया कि WH दो टाइप का होता है, एक होता है यस नो और एक होता है WH। तो यस नो में जैसे हैव यू गॉन देयर, हैव यू मेट हिम, हैव यू मेट हिम, क्या आप उससे मिले हैं, तो हैव यू मेट हिम। नॉट भी लगा सकते हैं, हैव यू नॉट हिम, क्या आप उससे नहीं मिले हैं। और WH मतलब भी लगा सकते हैं, जैसे वेयर हैज सी गॉन, वेयर हैव यू गॉन, वेयर हैज सी ईटन, व्हाट हैज सी ईटन, वह क्या खाई है, व्हाट हैव यू ईटन, तुम क्या खाए हो, तो WH हो गया। तो बहुत आसान है, आप अगर WH लगा देते हैं तो वो हो गया WH क्वेश्चन, WH इंट्रोगेटिव। और अगर WH नहीं लगाते हैं, WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं, तो वो हो गया यस नो क्वेश्चन, दैट्स इट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। अब जैसे इसमें क्या है कि समय के साथ साथ रहा नहीं दिया होगा, जैसे वह गा रहा है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। अगर वहीं पे है कि वह 2 दिनों से गाँव नहीं आ रही है, या वो 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है, या वो 2 दिनों से पढ़ रही है, अगर हम सीधा बोलते हैं वह 2 दिनों से पढ़ रही है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगर हम बोलते हैं 2 दिनों से पढ़ रही है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फिर से सुनिए, अगर वह पढ़ रही है दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब हम बोलेंगे वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है, या वह 2 दिनों से पढ़ रही है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जिसमें ड्यूरेशन लगा हो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो आ जाता है। अब इसका अफर्मेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव आइदर हैज प्लस बीन, before, for since, object complement. Have has plus been plus before plus for since, object complement. इसमें भी कुछ नहीं करना है, हैव हैज के बाद वही रहेगा, नॉट लगा देना है, बीन वही रहेगा, बिफोर, फॉर सिंस, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव नॉट लगाना है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, प्लस बीन, बिफोर, फॉर सिंस, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं आप। वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है, वह 2 दिनों से पढ़ रही है, तो अफर्मेटिव हो गया। She has been reading, she has been studying। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि रीडिंग कहाँ लगाएंगे, स्टडिंग कहाँ लगाएंगे। तो स्टडी वहां लगेगा जहां पे हम पढ़ के उस चीजों का मतलब भी समझते हैं। पढ़ के उस चीजों का अगर हम मतलब समझते हैं तो वह स्टडी हो गया। अगर हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हम रीडिंग बोलते हैं, isn't it? तो वह 2 दिनों से पढ़ रही है, she has been reading या she has been studying for 2 days। वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रही है, she has not been studying for 2 days। क्या वह 2 दिनों से पढ़ रही है? क्या वह 2 दिनों से पढ़ रही है? Has she been studying for 2 days। अब इसमें सबसे जो समझने वाली बात है, where shall I use for and where shall I use since। for का प्रयोग कहाँ करेंगे और since का प्रयोग कहाँ करेंगे। have has तो आपको क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने आपको बताया था कि have प्लूरल होता है और has सिंगुलर। have is प्लूरल वर्ब एंड has is सिंगुलर वर्ब। have का प्रयोग हम प्लूरल के साथ करते हैं और has का प्रयोग
सिंगुलर के साथ करते हैं। अब सिंगुलर वाट, जैसे सी हैज बीन, ही हैज बीन, राम हैज बीन, सी हैज बीन, एक्सेट्रा। हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? आई वी यू के साथ। क्लियर हो गया है? अब सिर्फ मेन बच रहा है कि फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ करें। तो फोर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड के लिए। वंस अगेन, फोर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड के लिए और सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट के लिए। अब पॉइंट को क्या होता है भाई? पॉइंट मतलब ऐसा नहीं कि केंद्र बिंदु। पॉइंट मतलब हुआ कि जैसे वह मंगलवार से स्कूल नहीं आ रही, शी हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मंडे, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस जनवरी। वह जनवरी से नहीं पढ़ रही है, वह मंगलवार से नहीं पढ़ रहा है, वह 2003 से। तो ये हो गया पॉइंट। पीरियड मतलब क्या होता है? पीरियड मतलब हो गया 2 घंटा, 3 घंटा, 4 दिनों से, 5 दिनों से। तो वो फोर यूज करेंगे। जैसे मेरा भाई 2 वर्षों से बैंक में काम कर रहा है, तो क्या होगा? माई ब्रदर हैज बीन वर्किंग इन बैंक फॉर 2 years। अगर उसी में रहता कि मेरा भाई जनवरी से बैंक में काम कर रहा है, तो हम क्या लगाते? तो हम फोर नहीं लगाते, तो हम सिंस लगाते। क्या होता फिर? माई ब्रदर हैज बीन वर्किंग इन बैंक सिंस जनवरी। क्लियर हो गया? दैट्स इट।